हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only foot and carry goods on their backs. Later on, they began to use animals for transport. पहले के ज़माने में people को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था, तो वो पैर से चल के जाते थे और गुड्स को मतलब सामान को अपने बैक पर लेकर जाते थे। फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. तो ट्रांसपोर्ट के लिए वो वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड इन एशियन टाइम्स। मतलब वो बोट्स यूज़ करते थे वाटर रूट्स के लिए। To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. मतलब वो एक बड़ा सा ट्री का ट्रंक लेते थे और बीच में से हॉलो बना देते थे, तो उन पर बैठकर हम ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे बोट्स बनाते थे। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर एक बोट बनाई। तो ये रहा सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये रहा, इसमें ट्रेन आ गई, बस, फिर कैमल कार्ट, बोट, फिर प्लेन और बाइसिकल। हाउ वाइड इज दिस डिस्क? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कैसे पता चलता था पीपल को कि वो कितना कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल अवे योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच स्कूल? When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. How will you know the answers to these questions? मतलब आपको ऐसे पता चलेगा कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए हो। मतलब आपको अगर स्कूल जाना हो तो आप रिक्शा, बस, वो सब यूज़ करते हो स्कूल जाने के लिए। और मार्केट में अगर आपको कुछ बाय करना हो तो वो भी आप रिक्शा, व्हीकल या बस से जाना पड़ता है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट whose length or width we need to know. In Paheli and Bojo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bojo share one desk, but frequently end up objecting that the other uses the larger share of the desk. मतलब उनके क्लासरूम में एक बड़ा सा डेस्क होता था जिसमें 2 स्टूडेंट्स बैठते थे, बट दिक्कत यह आती थी कि एक ज़्यादा जगह लेता था और एक कम। Both Paheli and Bojo were very fond of playing गिल्ली डंडा with their friends. Bojo bought a set of गिल्ली डंडा with him. मतलब बोजो क्या करता है, गिल्ली डंडा का सेट लेके जल्दी से आ जाता है। Here is how they tried to measure the length of desk using gilli
एंड डंडा। मतलब वो डेस्क को क्या करता है, डेस्क को उससे मेजर करता है। देयर आर सो मेनी ओकेशंस व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ्स and distance. The tailor needs to measure the length of cloth to know if it is enough to stitch a kurta. A carpenter needs measure the height and width of cupboard to know how much wood he would need to make its door. मतलब टेलर को क्या करना पड़ता है, टेलर को मेजर करना पड़ता है कि कितना साइज़ का कुर्ता बनाना है, और कारपेंटर को मेजर करना पड़ता है कि कितने हाइट का कबोर्ड है ताकि वो उसका दरवाज़ा बना सके। We see that measurement means the comparison of unknown quantity. हम देख सकते हैं कि measurement का मतलब the comparison of unknown quantity है। With some known quantity is known, fixed quantity is called unit. With मतलब थोड़ी सी quantity, this known fixed quantity is called unit. मतलब known quantity जो है उसे हम unit कहते हैं। The result of measurement is expressed in two parts. तो measurement two parts में divided है। One part is called number, and the other part is called unit of measurement. Standard unit of measurement. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and distance of a step were commonly used as different units of measurement. Correct measurement of length. In our daily life, we use various types of measurements. Devisings. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose the suitable devices. तो यहाँ बताया गया है कि मेथड क्या है प्लेस करने की। अगर आप रूलर प्लेस कर रहे हो तो कैसे करनी चाहिए। यहाँ जो है मेथड ऑफ प्लेसिंग स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, मतलब यहाँ ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। देखते हैं कैसे। ए में क्या किया है कि ए में एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और बी में यहाँ बी में टेढ़ी लाइन है और ए में सीधी लाइन है। तो ए तो करेक्ट हुआ, बी इनकरेक्ट हुआ। फिर यहाँ करेक्ट and incorrect method of placing scale with broken edge. अगर आपकी एज ब्रोक हो गई है तो आप कैसे रखेंगे स्केल को। तो ए में तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखो यहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे मेजरिंग, या आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, और जो लेंथ होगी यहाँ जो लेंथ होगी
आप उससे 1 माइनस कर देना, मतलब यहाँ 14 था तो आप -1 कर सकते हो और इसका 13 आंसर आ सकता है। ये करेक्ट है मेथड। A is incorrect and B is correct। यहाँ फिगर 10.9 है। B is the proper position of eye for taking reading of scale। तो यहाँ दिया गया है कि कैसे आपको कैसे देखना है। ये सामने बैठ कर देखना है या ऐसे देखना है या ऐसे देखना है। आप कैसे देख सकते हो? आप बिल्कुल सीधा होकर देख सकते हो। यहाँ आप सीधा देख सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं देख सकते हो, सीधा देख सकते हो आप। ठीक है। फिर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन कर्व्ड लाइन। आप कैसे करोगे लेंथ, मतलब आपको कैसे पता चलेगी लेंथ कर्व्ड लाइन की? कर्व्ड लाइन की आपको लेंथ कैसे पता चलेगी? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ एन कर्व्ड लाइन directly by using meter scale. We can use a thread to measure the length of a curved line। मतलब आप यहाँ थ्रेड का यूज़ कर सकते हो। Activity 6. Select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants likely to be attracted to the sugar, and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try to make a small mark with a pencil near the position when it has just crawled on to the sheet of paper। ठीक है। आपको स्मॉल मार्किंग करनी है उसमें। टाइप ऑफ मोशन। You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or falling one stone। Figure 10.12। यह आप देख सकते हो, यहाँ सीधी जा रही है और यहाँ भी जो परेड है, ये परेड है, वो भी सीधी लाइन में जा रही है। ठीक है। ऑफ मोशन। What kind of motion is this? Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track। Can you think of more such examples from your surroundings? आप क्या सोच सकते हो कि आपके अराउंड ऐसी कोई होगी? तो ये जो सीधी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सीधा मूव करती है एकदम स्ट्रेट पाथ में, ये भी स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है ना, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ सर्कुलर मोशन में मूव की जाने वाली ऑब्जेक्ट्स दी है। सर्कुलर मोशन मतलब आपका फिक्स्ड वन पॉइंट होता है, उसके आसपास घूमने वाली चीज़, यानी चीज़ जो मूव करती है, उसे हम
सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक पंखा लटका है और उसके आसपास ये विंग्स घूम रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ भी देखो आप, ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पूरा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फिर यहाँ पहेली झूला खा रही है और भोजो उसे धक्का दे रहा है पीछे से। और यहाँ क्लॉक भी टिक टिक कर रही है, आप देख सकते हो, हिल रही है। गिटार का जो ये होता है वो भी आप जब बजाते हो तब वो वाइब्रेट होता है। घंटी भी आप वो वाइब्रेट होती है और ढोलक भी आप वो वाइब्रेट होता है। तो जो पीरियोडिक मोशन होता है ना, मतलब आप यहाँ देखो, पीरियोडिक मोशन मतलब एक चीज़ रिपीट होना। आप जब झूला खाते हो, ठीक है, तो आगे आते हो फिर पीछे जाते हो, आगे आते हो फिर पीछे जाते हो, तो वो पीरियोडिक मोशन कहता है। और वो ऑक्सिलरी मोशन भी कहलाता है। तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सारे पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल्स हैं। Objects or path of it repeats its motion after a fixed interval of time. यहाँ उसकी डेफिनेशन दी है, वो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन दी है यहाँ।